जय हिंद, जय भारत, and welcome to Dev Talks. As you all can see, आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अंकित शाह, who's been quite a voice in terms of what is happening. ये geopolitics, जो economic geopolitics हमारे आसपास चल रही है, उसके बारे में he's a quite a strong voice. डॉक्टर साहब, first and foremost, thank you so much for joining me, and I've been listening. आपके views मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ about de-dollarization, about whole lot of other things, and आपका you're one of the first few who've come out and spoken about it. So, first of all, thank you so much, and thank you for joining Dev Talks. Thank you for inviting me. Sir, I wanted to start with a very basic, simple question. You know, a lot of people say कि यार ये जो war हो रही है आपकी यूक्रेन के अंदर, Hmm. इसके अंदर इकोनॉमिक गेम क्या है? बिकॉज अमेरिकन इतना पैसा तो खर्चा करेंगे नहीं किसी के लिए. Hmm. What is the economic game behind the Ukraine war, sir? Let's start with that, and then we'll kind of build on to the discussion, sir. Correct. So, uh, this war based economic machine started with uh, the military industrial complex that we see in the West as well as in Russia. So, you need to understand that when you don't know how to earn money, this is exactly what would happen. So the Western population, when they came in search of India 400, 500 years back in the 1600s, they were perplexed with the thought that what is this geography which is supplying exclusive clothes, exclusive spices and food items, and draining us with physical gold as payments. So they came in search of India with that. Now, for the first 300 years, the Britishers had this colonial loot, especially from India. And we understand that the savings of this British loot was exported, and that is how America, Australia, and Canada were built. So it is built out of the Indian loot during the colonial period. Now, post British colonialism, as the baton of leadership went to the United States, they got latched on to this formula of reserve currency, wherein now you no more have a political hegemony as Britain, but you have the treatment of financial colonies for the entire world. So this is a financial subjugation of the rest of the world by imposing US dollar as the reserve currency of the world. Now, during that Cold War rivalry between Russia and United States, this entire military industrial complex which came into existence and got strengthened, the first casualty being their own president JFK. He was the first casualty. And we understand that democracies, especially in the West, are dominated by corporations. All the officials you will see either they came from some job into the government, or they are going to retire and join some private entity as a jobber. So you understand the vested interest lying on both the ends of the game, from the starting point in governance till you are leaving the governance, and even after leaving the governance, the way you are going to influence the policies of the government, because some companies have offered you something in return. So this entire politics where the West does not know how to earn money on its own, which the cycle is coming to an end. First 300 years was the spending of the British loot from the colonies, particularly Indian. वो स्पेंडिंग अब खत्म हो रही है, और फिर जो रिजर्व करेंसी वाला फॉर्मेट बना के पूरा फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन किया वर्ल्ड का, अब वो भी डी डॉलराइजेशन की साइकिल के साथ खत्म हो रहा है. Which is why you see this entire things being played out, where you can see that these companies are now going to shift and settle in India, because that's the new global power they have selected, right? तो ये कंपनीज के लिए नेशनलिज्म के साथ दूर दूर तक उनको कोई लेना देना नहीं है. They
treat nations as their portfolios for profits, और वो नेशंस को तभी डंप कर देते हैं जब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होती है इकोनॉमी की, दैट क्रॉसेस डिफेंस स्पेंडिंग। तो ब्रिटेन को भी उन्होंने तभी डंप करके यूएस शिफ्ट किया था, और आज यूएस की वो पोजीशन है कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज क्रॉसिंग द डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी. So now by 2030, through this decade, what my prediction is that they are going to shift and settle in India. So this is their next portfolio. अब आपका जो क्वेश्चन है कि यूक्रेन वॉर, इसमें क्या फायदा हो रहा है कि स्क्रिप्ट इतनी खींची जा रही है. So you understand, I have a book launch this month or probably next month in Delhi, जिसमें जियोपॉलिटिक्स में मैंने ये टू बकेट थियोरी जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी हेजीमोनी का एक्सप्लेन किया है, एंड द डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन साइकिल. उसमें कंपनीज के मैंने चार्ट्स दिए हैं कि कैसे यूक्रेन वॉर से पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट में पोजीशंस ले ली थी, राइट. और ये जितना स्क्रिप्ट स्ट्रेच करेगा यूक्रेन वॉर का, उतने यूएस टैक्स पेयर्स के पैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में से वापस रूट बैक होके ये डीप स्टेट कंपनीज की जेब में जाएंगे, जहां से नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन यूएस का फंड भी होगा. तो ये पूरा खेल है, और ये इसमें कोई आई मीन ये तो अब खुला सा बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता. नाउ 20 years of war on terror in Afghanistan and Pakistan region, अब किसको नहीं पता है कि कोई वॉर हो ही नहीं रहा था. एवरीबडी नोज. सो दीज वॉर, जितनी भी मिसाइल दागी जा रही है या आर्म्स यूज हो रहे हैं, so these third countries are like a equipment or a tool with which you route back the taxpayers money into your pockets via this, uh, the defense contracts, the reconstruction contracts, the humanitarian aid contracts. ये ऐसे ही चलता है. ठीक, तो ये वही स्क्रिप्ट है पैसे जेब में डालने की. आई मीन अमेजिंग ना सर, जो जो भी अपनी दुकान चलाने के लिए क्या क्या लोग करते हैं. बट एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर. कई लोग बोलते हैं कि $4 ट्रिलियन थे इनके पास जो इनको इकोनॉमी के अंदर डालने थे. तो पेंडेमिक के टाइम पे वो जो कैश हैंड आउट देते हुए थोड़े बहुत तो डाले, बट 1.5-2 ट्रिलियन बचा है अभी अंदर डालने के लिए. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द यूक्रेन वॉर वाज पुट अक्रॉस कि इस टाइम पे करेंगे तो एटलीस्ट 100-200 बिलियन वहां पर खर्चे करेंगे, एंड विल बी एबल टू पुट दैट मनी इनटू द इकोनॉमी. इससे इन्फ्लेशन तो होगा होगा सर, और उसका इफेक्ट जो एसवीबी बैंक का जो है उस पर बात करेंगे. बट आपको ये थ्योरी में कितना स्ट्रेंथ दिखता है सर? नो, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक्स में और कुछ है ही नहीं. देयर इज ओनली डिफेंस, एंड देन देयर इज अ टैक्स सेक्टर. अब टैक्स सेक्टर का तो पूरा बर्थ ही फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर के साथ हुआ है. तो जी. जो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि टैक्स सेक्टर पूरा उसका वैल्यूएशन कोलैप्स होना है. तो जितना भी, जब फर्स्ट टाइम डी डॉलराइजेशन हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन ने यूरो करेंसी लॉन्च करके किया था, तभी 78% वैल्यूएशन वाइप आउट हो चुका था टैक्स सेक्टर का. हाँ जी, हाँ जी. आपने देखा .com बर्स्ट इन अक्टूबर 2002. टू. 78% वैल्यूएशन वाज लॉस्ट. सिमिलरली अब ये फाइनल राउंड चल रहा है डी डॉलराइजेशन का, तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल हालत क्या होने वाली है. तो बहुत सारे जो वर्टिकल्स हैं, जो आउटसोर्सिंग बेस्ड है, इंडिया में हो कहीं भी हो, जो वेस्टर्न क्लाइंट्स के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब बहुत ही बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं, और वो परमानेंट वाली, लंबी वाली. There is no recovery out of this, because this is a permanent final round of de-dollarization that is going on. तो ये जो फियाट करेंसी और आउटसोर्सिंग वर्क, इंडिया के खाते में आउटसोर्सिंग वर्क था, चाइना के खाते में मैन्युफैक्चरिंग था. तो दीज वर डॉग बिस्किट्स थ्रोन एट यू so that they can keep the US dollar going. It's a kind of a co-opting you in the fraud scheme, right? कि आपका भी चलो थोड़ा सा स्टेक आपको भी दे दिया, तो आप कंटिन्यू करेंगे विद द यूएस डॉलर. अब इनका जो पूरा डिप्लोमेसी का वेस्टर्न हेजीमोनी चलता है,
लास्ट 30-40 years, ये जिसको मैं बोलता हूँ टू बकेट थियोरी। तो एक कंट्री को बोला जाता है जो हेल्दी इकोनॉमी कंट्री है, उसको बोला जाता है कि तेरा बाजू वाला जो है वो बहुत रोग कंट्री है, तो उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, तो यू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर, ऑटोमेटिक यही होगा। सो ईरान इज केप्ट अंडर सैंक्शंस एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर allies, right? Russia is under sanction, Ukraine is supplied with dollars and arms। तो क्योंकि बहुत सादा सी बात है कि कोई भी हेल्दी इकोनॉमी क्यों यूएस डॉलर के साथ कंटिन्यू करेगी, तो एक ही रीजनिंग है कि बाजू वाला रोग होना चाहिए Hmm. और उसको सैंक्शन में होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द टू बकेट थियोरी विच वेंट ऑन, मतलब बहुत लंबा चला, ये कोई नई बात नहीं है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, राइट, सारे नेबर्स देख लो, रशिया इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, राइट? चाइना इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये चला लंबे समय तक चला, विच इज वाई बोलते हैं कि हेनरी किसिंजर इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिप्लोमैट, राइट? Hmm. क्योंकि ये फॉर्मूला चला 50 years तक, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is paying the bills of the American lifestyle by using the US dollar as the reserve currency status। तो उसको 50 years को इंटेलिजेंट वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज आर रिसेंटली बॉर्न, Hmm. उन्होंने, उनका तो बर्थ ही अभी हुआ है 300 400 500 years बैक, राइट? तो उनको 50 years इज लाइक अ ह्यूज सक्सेस। नाउ टू अ सिविलाइजेशन समथिंग लाइक इंडिया, 300 400 years is like a week in our life, right? So we do not believe in this kind of shortcuts of sustaining economics, right? तो ये जो है एक्सपेरिमेंट अब चल नहीं सकता, उनको भी समझ में आ गया, which is why the companies are aligned, as I say, majority of the chunks of the US deep state is now aligned on the de-dollarization process। और इसके आपको मैं भर भर के एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अफगानिस्तान एग्जिट वाज अ यूएस डिसीजन, उसके तुरंत बाद सऊदी अरेबिया साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन विद रशिया। Hmm. सो इवन प्रिंसिपली स्पीकिंग, जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम था 1973 का डॉलराइजेशन के लिए, उसको डी डॉलराइजेशन का रिवर्सल आप मान सकते हैं इस इवेंट को, एज सुन एज अफगानिस्तान एग्जिट हैपेंड। उसके बाद आप देख लो यूक्रेन की स्क्रिप्ट चली, उससे पहले सारी कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में पोजीशंस ले ली। हाँ, फिर डिफेंस डील्स मिलने लग गई वेस्टर्न यूरोप की कंट्री से, जर्मनी ने कुछ F-35 के ऑर्डर्स दिए, बहुत सारे ऑर्डर्स, अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर्स दिए यूक्रेन को फ्री में सप्लाई करने को, राइट? तो फिर ये पूरा देख रहे हैं आप। उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला कि यू बैन द इंपोर्ट ऑफ रशियन गोल्ड। नाउ accumulation of gold and silver is de-dollarization, that's what is the primary step of de-dollarization, Hmm. right? अच्छा, आपने यूरोपियन यूनियन को उल्लू बनाया कि गोल्ड आप ना ले रशिया से, उसके बाद आप खुद गोल्ड सप्लाई कर रहे हैं स्विस रिफाइनरीज को, Yeah. और वो स्विस रिफाइनरीज गोल्ड पास ऑन कर रही है चाइना को। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड फॉर डी डॉलराइजेशन, दैट एशिया एंड गल्फ एक्यूमुलेट फिजिकल गोल्ड। तो आप मतलब कितने अंधे को भी दिखाई दे रहा है, कितने प्रूफ चाहिए आपको? अच्छा, अभी जापान ने साइन किया चाइना के साथ कि उनका बायलैटरल ट्रेड एक बहुत बड़ा चंक जो है वो बायलैटरल करेंसीज में होगा। नाउ जापान इज योर एलाई, आप बोलते हैं इज योर एलाई। फिर आपने देखा जापान, इराक और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट, जापान इज योर एलाई। सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर टेलिंग we will consider crude oil sale outside dollar, clearly saying while you have military bases right now in Saudi Arabia, Yeah. you haven't withdrawn। अच्छा, आपके ठीक बगल में नीचे मैक्सिको बोल रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। तो मतलब और तो क्या एग्जांपल्स देने आपको कि दिस पीपल आर अलाइंड ऑन इट। अच्छा, 2019 में जब आपने गोल्ड को टायर 1 बेजल नॉर्म्स में रखा,
उसी दिन आपने अमेरिकन और डॉलर को डिच कर दिया. दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. और क्या प्रूफ चाहिए? यू मेड इट इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर बाय Hmm. कीपिंग इट एज टायर वन इन द बेसल थ्री नॉर्म्स फॉर बैंकिंग. उसके बाद यू आर सीइंग all Asian and the Gulf countries central banks collecting physical gold. Gold. तो बहुत ही क्लियर है कि a big chunk of the US deep state companies are aligned on the de-dollarization process. Aligned. Now, I'm not saying that they decided it or not decided, but they are aligned on it. Now, what would be the motivations? One, as I told you, कि उनका खुद का डेट का माउंटेन क्रिएट हो गया है $31 trillion प्लस का. तो ये टू बकेट थियोरी खेलते 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 इतना डैमेज कर चुके हैं वो यूएस इकोनॉमी को, क्योंकि एवरी टाइम जो यूएस डॉलर में सेविंग्स पार्क होता है, पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है जिसका रिसाइकलिंग होता है, तो हर बार यू हैव टू बैलेंस विद अ क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इन योर इकोनॉमी. Correct. जिससे जॉब जाते हैं, जॉब वापस आते हैं, फिर स्पेंडिंग होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना पड़ता है, इन्फ्लेशन. तो ये पूरा अब इतना हौच पौच हो चुका है. एंड विथ 30-40 कंट्रीज इंटेंट ऑन डी डॉलराइजेशन, तो अब तो वो मामला भी नहीं है कि एक गद्दाफी है, एक सद्दाम है कि उसको उड़ा दिया. राइट नाउ दीज आर 30-40 नेशन. अच्छा, अब वॉर का अगर सॉल्यूशन आप सोच रहे हो, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द यूएस डेट, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. Yeah. तो बहुत सारे मैं देख रहा हूं, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बिगीज और फंड मैनेजर्स, बिकॉज दे आर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग ओपनली. तो ये सारे ये रिलाई करके बैठे हैं कि यूएस मिलिट्री विल इंटरवीन. इन लोगों को नहीं पता है कि दिस गाइज आर अलाइंड. वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है. They are not realizing, they are not seeing the geopolitical moves happening over here. So जो भी रिलाई करके बैठा है. अच्छा, मुझे आप ये बता दें, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये दो कंट्रीज ब्रिक्स में एप्लीकेशन क्यों देगी? क्या वजह है? ब्रिक्स तो दो डिकेड से पड़ा है, किसी ने Hmm. अप्लाई नहीं किया. Why now? Hmm. हाँ, वाई? सीधी सी सादा सी बात है कि उन्होंने उनको समझ में आ गई है कि अगर सेविंग्स हम फियाट करेंसी डॉलर में इकट्ठा करेंगे, तो 20-30 साल बाद जब ये क्रूड ऑयल का स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट विल वी स्पेंड? द डॉलर इज बैक्ड बाय नथिंग. That is true. Dollars just backed by the dollar itself. Absolutely nothing. And it has lost 98% of its purchasing power since 1913. तो कोई अपनी सेविंग्स ऐसी जगह क्यों पार्क करेगा जिसका 98% परचेजिंग पावर जा चुका है ऑलरेडी? तो ये करेंसी की लाइफ साइकिल खत्म होने को आई है. ये बहुत सारे फैक्टर्स है, विच इज वाई सम फैक्शंस आर आल्सो अलाइंड टू दिस, कि हाँ भाई इसको अब क्लोज करनी पड़ेगी ये पॉन्जी स्कीम. राइट? क्योंकि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब क्रूड ऑयल वेल्थ इनका खत्म हो जाएगा Hmm. मिडिल ईस्ट का, और सोसाइटी पूरी रेडिकलाइज्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है, अभी तक फ्री का क्रूड ऑयल यूज कर रहे थे एंड दैट इज व्हाई दे वर वेल्दी, और अब 30 साल का स्टॉक बचा है, तो उनको ऐसी जगह अपनी सेविंग्स पार्क करनी पड़ेगी रेवेन्यूज में से, विच इज बैक्ड बाय सम एक्चुअल रियल वैल्यू. तो ब्रिक्स जो है अगस्त में करेंसी का फॉर्मूला डिस्कस करने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अ पेग्ड करेंसी. अब इसमें भी लोग के क्वेश्चंस हैं कि नहीं नहीं, फियाट करेंसी के बिना तो ग्रोथ ही नहीं हो सकता, वी कांट गो टू अ पेग्ड करेंसी वर्ल्ड. तो इनको ये समझना है कि पेग्ड करेंसी में के वर्ल्ड में जाने के लिए ही सऊदी अरेबिया और यूएई ने एप्लीकेशन डाली है. व्हाई दे विल अप्लाई फॉर अनदर फियाट करेंसी? Yeah. Hmm. Right? So इनको ये, there are too much of nuances out there and people are not observing these changes are big ones. Right? These are massive changes. और इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा आने वाला है, एशिया विल नॉट रिक्वायर टू एक्सपोर्ट एनीथिंग. मतलब जो क्वांटिटी में एशिया एक्सपोर्ट कर रहा है वेस्ट को, वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड ही नहीं होगी. विच इज वाई आप देख रहे हैं अक्टूबर 2022 में
शी जिनपिंग में पॉलिट ब्यूरो में दो ही बंदे थे, ली केचोंग जो उनका प्रीमियर था और एक वांग। ये दोनों थे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे और शी हम्म, जिनपिंग को दो टर्म से रेसिस्ट कर रहे थे। दोनों को डिमोट कर दिया गया। अब जो नई पॉलिट ब्यूरो है पूरी एंटी एक्सपोर्ट्स है। सो यू आर सीइंग द काइंड ऑफ चेंजेस। और वो अपनी पब्लिक को ओरिएंटेशन भी दे रहे हैं। उनका फॉरेन मिनिस्ट्री पे पूरा पेपर डाला है उन्होंने, कल्चरल हेजीमोनी ऑफ यूएस, इकोनॉमिक हेजीमोनी ऑफ यूएस, ये टाइटल्स देके दे आर ओरिएंटिंग देयर पब्लिक कि एक्सपोर्ट्स बंद होने वाला है। आप एक बात समझे कि अगर यूएस इकोनॉमी आर्टिफिशियली चल रही थी बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी, तो चाइनीज इकोनॉमी भी आर्टिफिशियली चल रही थी बाय बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग जायंट। तो धक्का दोनों को लगना है, किसी एक कोई एक बच जाएगा ऐसा नहीं है, राइट। तो ये जो पूरा रिकैलिब्रेशन होगा उसमें टेम्पररी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आना है चाइनीज इकोनॉमी में, जिसका ओरिएंटेशन वो चाइनीज टेलीविजन पे लाइव दे रहे हैं पब्लिक को। वो बता रहे हैं कि $100 प्रिंट करने में 17 सेंट्स का खर्चा आता है और उसके बदले द वेस्ट इज परचेजिंग $100 ऑफ रियल वर्थ चाइनीज गुड्स फ्रॉम हियर। तो वो तो अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। what others are doing, we can't see anything in the mainstream media as yet। और मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने जब प्रेडिक्ट किया था, दिस वाज 7 days बिफोर बाइडेन टूक ओथ एंड पीपल वर लाफिंग एट मी दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। सभी को हंसी आएगी, ही इज सेइंग डॉलर विल गो एंड ऑल दिस क्राइसिस। तो ये जो है ये होना ही है। क्योंकि आप पूरा रिवर्सल आप देख लो। अच्छा, कोई भी रिजर्व करेंसी चेंज होने का, अब क्योंकि ब्रिटेन वॉज हैविंग पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, क्योंकि उसका पॉलिटिकल हेजीमोनी था विद द कॉलोनीज, ओवर द कॉलोनीज। हम्म, तो जब पैटर्न ऑफ लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स गई तो यूएस डॉलर ने कैसे पाउंड को हटाया? दे एक्यूमुलेटेड फिजिकल गोल्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर सप्लाईज के बदले यूएस कलेक्टेड फिजिकल गोल्ड। जब हम्म, फिजिकल गोल्ड कलेक्ट हो गया तो ब्रेटन वुड्स में इंपोज कर दिया गया डॉलर एंड इट रिप्लेस्ड पाउंड एज द न्यू रिजर्व करेंसी। अच्छा, तो ये फैक्ट तो एस्टैब्लिश्ड है कि फिजिकल गोल्ड इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड is the primary way to de-dollar to you know bring in a new reserve currency for the world। अब क्योंकि यूके और यूएस को तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी बनाना था, सो दे नीडेड मैसिव गोल्ड, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल गोल्ड। बट जो ब्रिक्स कंट्रीज बना रही है, they are making a basket for all the participant currencies of all the nations which will become member। वो एक कंट्री का रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, दे आर मेकिंग अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिजर्व करेंसी, राइट। तो कोई एक कंट्री आके ये नहीं बोल सकता अच्छा मैं तुमको सैंक्शन कर दूंगा, मैं तो इसको ही बेल आउट करूंगा, मैं उसको वेपन दूंगा, राइट, मैं आपके रिजर्व फ्रीज कर देता हूं। ये सब नहीं हो पाएगा विद द ब्रिक्स करेंसी, क्योंकि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, नहीं बनेगा। राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे वो बोलते हैं इंडिया चाइना का तो एलएसी का कौन किसको ट्रस्ट करता है। तो मैं बता दूं ये पूरा मिसकंसेप्शन हमारे इकोनॉमिस्ट डिप्लोमैट्स हर जगह है कि यूएस डॉलर हैज द ट्रस्ट। अब मैं बता दूं कि ट्रस्ट है ही नहीं किसी को यूएस डॉलर, ना कभी पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। ट्रस्ट जो था वो इस बात का था कि यूएस विल एबल टू एंडलेसली प्रिंट द डॉलर एंड दैट सिक्योर्स माय पेमेंट। कि मैंने अगर मेरी सेविंग्स वहां पार्क करी है तो कम से कम मेरा कैपिटल तो नहीं जाएगा, मेरे को नहीं, फेडरल हाँ। रिजर्व प्रिंट करके भी दे देगा। हम्म। ये ट्रस्ट था। सो द ट्रस्ट वाज ऑन लिक्विडिटी एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर, नॉट ऑन द यूएस डॉलर, not on the US brains, not on the US military, not on the US government, not on the US economy। ट्रस्ट इस बात का था कि कुछ क्राइसिस आता है या कुछ भी अनसर्टेनिटी वाला इवेंट है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो मेरी सेविंग्स वहां पे सिक्योर्ड है, क्योंकि वहां छाप के दे देंगे मुझे कम से कम।
हाँ, एंडलेस प्रिंटिंग आउट ऑफ थिन एयर। तो करेक्ट। ये ट्रस्ट था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यू विल नीड टू मच गोल्ड, क्या पब्लिक का गोल्ड ले लिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट? नो, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हम सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, तो किसी भी एक कंट्री को इतना गोल्ड एक्यूमुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं सारी सेंट्रल बैंक्स को बहुत ही कम मात्रा में अपने रिजर्व्स गोल्ड में रखने हैं, which everybody has done. They collected the physical gold in the correct proportion, जितने proportion में चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट। तो क्योंकि ये मल्टीलैटरल करेंसी बन रही है, तो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर इंडिया चाइना का एलएसी पे वॉर भी हो जाता है, ब्रिक्स करेंसी विल स्टिल कंटिन्यू, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट करेंसी। खाली नॉट युआन जस्ट। या खाली युआन या खाली रुपीज पे नहीं चल रहा वो। तो एक भी बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट का वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये बात आप समझ लें। ठीक, अगर मैं एग्जांपल भी दे दूं, जैसे पोलैंड मांग रहा है जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रेपेरेशन दो, तो उसका कोई भी इंपैक्ट यूरो करेंसी पे नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ मल्टीलैटरल करेंसी। ठीक, करेक्ट। तो मल्टीलैटरल करेंसी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स का। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कि क्या अगर ब्रिक्स रिजर्व करेंसी जो नहीं आ रही है, व्हाट इफ इट फेल्स? तो भी मैं बता दूं कि डी डॉलराइजेशन कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स पर ट्रांजिशन होते होते all countries would have already shifted to their bilateral currencies for trade। ठीक, हाँ। हम्म। तो कोई भी वापस तो डॉलर पे जा ही नहीं रहा, ये बात आप समझ ले अच्छे से। रिडक्शन हो रहा है, हाँ जी। सो इफ इंडिया एंड श्रीलंका आर ट्रेडिंग इन देयर ओन बायलैटरल करेंसीज, तो ब्रिक्स फेल भी हो जाए, दे विल स्टिल कंटिन्यू। डजंट ब्रिक्स मैटर। करेंसी चाहे फिर भी, हाँ। सो ये जो कोई सोच रहा है कि ब्रिक्स विल नॉट वर्क, तो डी डॉलराइजेशन स्टॉप हो जाएगा, इट विल नॉट। अच्छा, एक पोर्शन जो है डी डॉलराइजेशन का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, विच इज जनवरी 2022 से एक भी एयरलाइंस ने यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट नहीं किया। नोबडी हैज पार्क्ड देयर सेविंग्स इन द यूएस ट्रेजरी सिंस जनवरी 2022। अब ये तो फैक्ट है, उनके खुद के एयरलाइंस ने भी नहीं किया, दूसरे जाने दो, नॉट इवन द एयरलाइंस। तो एक पोर्शन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सेकेंड पोर्शन इज शिफ्टिंग आउट द ट्रेड, जो ऑलरेडी बायलैटरल तो चल ही रहा है। चल अच्छा, रहा अगर है। ब्रिक्स करेंसी फेल हो जाती है सपोज, तो यू स्टिल हैव अनदर ऑप्शन। आपका जितना भी रिजर्व्स है, यू जस्ट हैव टू मेंटेन टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसीज एंड गोल्ड फॉर गैप एडजस्टमेंट, दैट्स ऑल। यू आर स्टिल डी डॉलराइजिंग। आपके जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, आज अगर पूरा रिजर्व 600 बिलियन का डॉलर्स में है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, मेरे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है, उस प्रपोर्शन में मैंने छांट दिया, गैप एडजस्टमेंट के लिए गोल्ड रखा है, आई एम स्टिल डी डॉलराइजिंग। आई डोंट रिक्वायर अ ब्रिक्स करेंसी टू डी डॉलराइज। बट ब्रिक्स करेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक सीमलेस ट्रेड हो जाए सारे ब्रिक्स प्लस पार्टिसिपेंट नेशंस के लिए, कि कल को कोई टूरिस्ट रशिया में जा रहा है एंड तो एक कॉमन करेंसी टूरिस्ट यूज कर सकता है। सारे मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए जो भी नई इंटरनेशनल बॉडीज बनेगी, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की रीजनल ऑफिस जो गिफ्ट सिटी में यहाँ स्टार्ट हुई है, जिसको मैं बोलता हूँ कि वो मिनी वर्ल्ड बैंक बनेगा, राइट? तो that is going to handle the entire de-dollarization process as a nodal agency। और आप देख ही रहे मूवमेंट्स, आप देख ले 2.4 लाख करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द साइज टू 3। अहमदाबाद एयरपोर्ट 10,000 crore new investment, 10,000 crore for 3 railway stations including one of Ahmedabad। And then Jai Shankar ji brought 50 countries for Navratri last year। तो आप मूव्स तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अच्छा, दिसंबर 22 वाज द डेडलाइन कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे विथ वीटो पावर के लिए कुछ सीरियस रिफॉर्म्स इनिशिएट हो, जो नहीं हुए।
उसके तुरंत बाद इंडिया स्टार्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एंड 22 वाज द ओनली ईयर जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑल थ्री डिड नॉट अटेंड द यूएन इवेंट इन यूएस। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस साल कुछ सीरियस रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस में नहीं स्टार्ट होता है, तो ये तीनों जो लीडर्स हैं बाकी लीडर्स को बोलेंगे आप भी मत जाओ। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? तो दूसरा, हमें व्यूअर्स को भी ये बात समझना है कि आप वो यूनिपोलर डॉलर 18th सेंचुरी कॉलोनियल माइंडसेट से वर्ल्ड को देखना बंद करें कि कोई ग्रुपिज्म चल रहा है। हम क्या रशिया चाइना के साथ ग्रुप बना रहे? जी बिल्कुल नहीं बना रहे। हम क्या यूएस के साथ ग्रुप बना रहे? हम नहीं बना रहे कोई ग्रुप। वो ग्रुपिज्म चाहिए था यूनिपोलर डॉलर वर्ल्ड के लिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिप्लोमेसी जो होगी वो हर एक सिंगल एजेंडा आइटम पे अलग अलग होने वाली है। एवरी सिंगल एजेंडा आइटम इज अप फॉर ग्रैब्स फॉर नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग अमॉन्ग एवरी कंट्री। छोटे से छोटे नेशन को आपको पूछना पड़ेगा। आप भूल जाएं कि चाइना इज गोइंग टू डिसाइड फॉर 10 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू डिसाइड फॉर 10 कंट्रीज। आप ये भूल जाएं, आप इससे बाहर निकल जाएं। कल को अगर क्वाड लेके आता है नई रिजर्व करेंसी फॉर वेस्टर्न कंट्रीज अलायंस, इंडिया विल ज्वाइन देयर एज वेल। Yeah. तो बहुत से मुझे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि आप हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं क्या? मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप अपने दिमाग से निकाल लें। अच्छा, जो लास्ट एससीओ समिट हुई जहां पे नेशनल करेंसीज के ट्रेड के बारे में बात हुई थी, यू हैव सीन प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट लास्ट ऑन द लास्ट डे, एट द लास्ट मोमेंट, जब ऑलमोस्ट सब कुछ रैप अप हो गया था, दैट मोमेंट ही वेंट। तो ऐसा कोई हम अलायंस नहीं बना रहे रशिया चाइना के साथ एक्सक्लूसिव, और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज रहे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यूएस डॉलर विल कंटिन्यू, बट एक नेगोशिएशन शुरू होगा कि एशिया एंड गल्फ एक पॉइंट पे बोल देगा कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अ फियाट करेंसी एज पेमेंट। या तो आप पूरा जो वेस्टर्न कलेक्टिव है अपनी करेंसीज को पैक करें किसी फॉर्मूला के साथ, तो हम इनवॉइसिंग रेफरेंसिंग सही से कर पाएंगे। या तो फिर अगर आपको फियाट करेंसीज कंटिन्यू करना है फॉर्मेट, तो फिर आपको ब्रिक्स नेशंस को फिजिकल गोल्ड देना पड़ेगा एज पेमेंट। हाँ हाँ या हाँ तो हाँ आप हाँ। या तो आप करेंसीज पैक करो या गोल्ड दो हमें एज पेमेंट फॉर वॉट एवर यू बाई फ्रॉम अस। एज सिंपल एज दैट। एक भाई मोमेंट, ये जब मोमेंट आएगा तब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सारे रीस्ट्रक्चरिंग और रीनेगोशिएशन स्टार्ट होंगे। सबसे सबसे ज्यादा तो रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होना चाहिए सबसे पहले, तो वो तो सबसे बड़ा वहां से इशू है। क्या क्या थियरीज निकल रही हाँ, है। किसी को जंगल बोलते हैं, किसी को गार्डन बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं। यू नो इट्स दिस क्वाइट इज सैड। दिस इज अ पार्ट ऑफ, और मैंने ये लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर दिया था बिकॉज आई वाज वाचिंग कि कैसे वेस्टर्न मीडिया में ये आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं कि बग्स एंड इंसेक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन। तो जितने भी व्यूवर्स मैं देख रहे हैं मैं बता दूं, दीज बग्स एंड इंसेक्ट्स आर हाई ऑन टॉक्सिक एलिमेंट्स। उनमें जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई प्रोपोर्शन में होते हैं, नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन बॉडीज फॉर कंजम्पशन। अच्छा, वेस्ट ये क्यों प्रोपेगेंडा चला रहा है? क्योंकि उनको पता है कि यूक्रेन स्क्रिप्ट में सप्लाई सारी एशिया और गल्फ से नहीं होनी है। करेक्ट। और जो एंड पोस्ट डी डॉलराइजेशन, जैसा मैंने बताया कि करेंसी और वैल्यूएशन का फ्लिप इतना बढ़ जाएगा that even if Asia wants to sell, these guys won't be able to buy. बाय। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अब जल्दी जल्दी शिफ्ट करो। तो डी डॉलराइजेशन के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी बोलते हैं डी कपलिंग, कभी बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग, अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग डी डॉलराइजेशन। हिलरी क्लिंटन तो बोलती है क्लाइमेट चेंज, डी डॉलराइजेशन को क्लाइमेट चेंज बता रही है। वो बोल रही है कि करेंसी नोट्स, फिजिकल करेंसी नोट्स हटा देनी चाहिए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
Yeah, yeah. तो ये अलग अलग नाम दे रहे हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन को, बट इट्स बेसिकली डी डॉलराइजेशन। और उसी एंड दिस डी डॉलराइजेशन इज इक्वल टू डी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 के क्राइसिस के बाद गल्फ को ये रियलाइजेशन हो गया है कि वी हैव टू मूव आउट ऑफ डॉलर, वरना खत्म हो जाएगा पूरा इकोनॉमी। दे हैव टू गो बैक टू द कैमल्स, और वो बाजू वाले बेगिस्तान जैसा हालत उनका होना, तो उनको वो हालत नहीं करनी है अपनी। सो दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी, और उनको वो देखते हैं। और आई विल टेल यू, जो मेरा जियो पॉलिटिकल रीडिंग है, MBZ of UAE was waiting for more than 1.5 decade to find some international support to begin de-radicalization. Wow. और 2014 में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, he perfectly fit into that spot. तो ये पूरा गल्फ को समझ में आ गया। उन्होंने देखा है कि यूएस कैसे डी रेडिकलाइज करता है, ऊपर से बॉम्बर्स जाते हैं। चाइनीज तो ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं उइगर मुस्लिम्स की बॉडीज में से। और रशियन स्टाइल भी देख लिया मिलिट्री, हाउ हाउ दे एक्ट ऑन इट। तो उनको लगा कि द इंडियन सनातन धर्म, योग, आयुर्वेद एंड मंदिर इज द राइट वे टू डी रेडिकलाइज, अ सेफर मेथड ऑफ डी रेडिकलाइजेशन, राइट? Which is why you see that this entire movement going on, where now they are finding their historical links with the Indian subcontinent. अब वो खुद अब वो खुद होली मनाना चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि मंदिर एस्टैब्लिश हो, राइट? वो खुद चाह रहे हैं कि एक टूरिज्म इकोनॉमी बैठे अराउंड द मंदिर इकोसिस्टम, राइट? तो क्योंकि उनको डाइवर्सिफाई करनी है अपनी अपनी इकोनॉमी, उनको पब्लिक को रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस डॉक्ट्रिन से Correct. बाहर निकालना है। दे वेस्टेड, उनका रियलाइजेशन है, दे वेस्टेड 50% ऑफ क्रूड ऑयल वेल्थ in radicalizing the Indian subcontinent and the Middle East, just to keep the US dollar surviving. अब जाके उनको समझ आ रहा है। और चाइनीज को रियलाइजेशन आ गया है कि 40 साल तक मजदूरी करके पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया, और प्रॉफिट कितना किया? $3 ट्रिलियन, 3। तो चाइनीज को समझ में आ गई कि हमको भी बेवकूफ बनाया गया है, डॉलर ने हमको भी बेवकूफ बनाया। वी बिकेम एजेड बिफोर वी बिकम रिच, Hmm. और Hmm. खत्म हो गया उनका इकोनॉमी। और यूएस ने तो 13 ट्रिलियन से ज्यादा प्रिंट कर दिए लास्ट 3 इयर्स, कोविड में Hmm. फ्री में बांटे हैं चेक अपनी पब्लिक को। तो 13 कहाँ और 3 ट्रिलियन 40 साल काम करने के बाद। तो आप समझ रहे हैं, सबको समझ आ गई है कि क्या कितना फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड का। आपने जो एक टर्निंग पॉइंट बताया सर फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन के बारे में, कि आई थिंक अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो डरी ही हैं कि जब रशिया के 300 बिलियन सीज करे इन लोगों ने, ये कैसे है यार, ये तो किसी और के पैसे, यू कांट जस्ट होल्ड समबडीज मनी, दैट्स थीवरी। आपको उनको सैंक्शन करना है, करो, कोई मना नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं बोला आप सैंक्शन क्यों कर रहे हो, बट जब उनके पैसे रोके गए ना, आई थिंक दैट आल्सो क्रिएटेड अ परसेप्शन कि यार ये डॉलर से तो दूर हटना पड़ेगा। आप तो एकदम, you what you're saying is absolutely right, sir. इट इज स्क्रिप्टेड फॉर टेकिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स देयर। तो ये जितना बैंकिंग का कोलैप्स देख रहे हैं, ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है। बिकॉज व्हेन यू वांट टू प्रेस अ रीसेट बटन, तो पहले तो आपको सब कुछ कंट्रोल में लेना पड़ेगा। हाँ, you'll have to break everything. या तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जितनी भी छोटी बैंक्स है, उनको बड़ी बड़ी बैंक्स जो है वो निगल जाएगी, और फिर जो है ये रीसेट इजीली मार सकते हैं, राइट? तो ये तो खाली ट्रेलर था, आगे जो बैंकिंग क्राइसिस आना है बहुत बड़ा आना है, बहुत ही बड़ा वाला। कोई सर बचना नहीं, कोई नहीं बचेगा। चलो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ सर, कोई मतलब कौन कौन नहीं बचेगा? तो हमें दो इवेंट्स पे नजर रखनी है। एक है क्रेडिट स्विस, जो ऑलरेडी आईसीयू में लेटा हुआ है। हाँ जी। उस डेड बॉडी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अच्छा, ये बैंकिंग क्राइसिस तो ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने जब प्रेडिक्ट किया था, उसके कुछ ही वीक्स में स्टार्ट हो गया था। तो क्रेडिट स्विस को सबसे पहले आईसीयू में लेटाया गया बाय हुम? बाय द स्विस नेशनल बैंक।
तो फेडरल रिजर्व ने कुछ सीक्रेट स्वैप्स किए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्विस नेशनल बैंक को, और स्विस नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को बेल आउट किया टेम्पररी। उसके बाद वापस सऊदी अरेबिया को बोला गया कि अब आप थोड़ा ऑक्सीजन दे दे इसको वरना नहीं चलेगा। तो इसको खींचा जा रहा है टिल दैट क्राइसिस इवेंट टाइमिंग विच दे हैव डिसाइडेड फॉर द रीसेट। तो सऊदी अरेबिया ने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ महीने चला, फिर थक गए, फिर बोला अब किसी और को ढूंढो। सो देन दे स्टार्टेड सर्चिंग और फिर उनको कतर मिला। सो जी 23 जनवरी को कतर ने उसमें स्टेक लिया, और आपने देखा 24 जनवरी को अदानी एफपीओ के खिलाफ सारी पोजीशंस ले ली गई बाय क्रेडिट स्विस, और वो सारे जो शॉर्ट सेलर्स जो बाहर के प्रोडक्ट यूज करके जो स्टॉक मार्केट में पोजीशन लेनी थी वो हो गई 24 मार्च को ही। सो ये पूरा क्रेडिट स्विस का ये इस्तेमाल भी किया गया टू क्वेश्चन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो जहां तक मुझे लगता है कि दो यूएस के फैक्शंस हैं, वन विच इज अ मेजॉरिटी विच इज क्लियर ऑन द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, जो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, और एक दूसरा फैक्शन है जो सोरोस और क्रेडिट स्विस वाला ग्रुप है, who are challenging this the timing of the de-dollarization process। हाँ बता दूं व्यूवर्स को कि क्वेश्चन ये नहीं है कि होना है कि नहीं होना है, क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइम पे होना है, राइट? दैट इज व्हाट द क्राइसिस, द फाइट बिटवीन द टू फैक्शंस इज। अच्छा, तो दूसरा फैक्शन टाइमिंग पे क्यों अग्री नहीं कर रहा है? तो जो मुझे लॉन्ग टर्म दिखाई देता है उस हिसाब से उनका प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं चाहते कि कोई ब्राउन स्किन इंडियन, रेजिडेंट इंडियन, मैं एनआरआई की नहीं बात कर रहा, कोई रेजिडेंट इंडियन उनके सर पे आके बैठे एज अ ग्लोबल ऑपरेशन सीईओ और हेड। क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है कि इंडिया में शिफ्ट होके सेटल होना है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक। प्रॉब्लम खाली इतना है कि हु इज गोइंग टू हैव द कंट्रोल ओवर दिस ऑपरेशन विच आर लीड गोइंग कौन टू। करेगा? हाँ हाँ, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन चल रहा है अभी वेस्टर्न हेड से एनआरआईज, और 2030 आते आते ये सारी कंपनीज का लीडर होगा कोई रेजिडेंट इंडियन। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दे डोंट, सो द सेकंड फैक्शन डज नॉट वांट दिस टू हैपन। They are fine with selection of India, they are fine with shifting here for profits, etc., etc., not fine with working under a resident Indian as a leader। सोरोस की दिक्कत ये है। हाँ वो तो अच्छा, सर, वो तो है ना, वो तो क्योंकि हाँ मैं इनकी थियोरी बताता हूं। वेस्ट की थियोरी ये है कि या तो कोई कंट्री नेशनलिस्ट हो सकता है, या तो कोई कंट्री इंक्लूसिविस्ट हो सकता है। इंडिया उनके लिए प्रॉब्लम हो चुका है, इट इज नेशनलिस्ट एंड इंक्लूसिव। या तो कोई जर्मनी का हिटलर हो सकता है, हाँ या तो एक्सट्रीम। एकदम लिबरल फ्री वर्ल्ड वाला बंदा हो सकता है। इन दोनों के साथ हम हैंडल कर लेंगे। इंडिया के साथ उनको प्रॉब्लम यह है कि बंदा नेशनलिस्ट भी है और इंक्लूसिव भी है। इतनी यूनिटी नहीं चाहिए हमको पब्लिक की और गवर्नमेंट की। इनकी दिक्कत यहां पे है। तो सनातन धर्म इज द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद देम। बट सर आपका मेरे को समझ में आया ये पूरा, दिस आई अंडरस्टूड, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है सर, इसमें ये फेलिंग बैंक ये सरप्राइज है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लान? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, और ये तो होना ही था। आप जब आपने पूरी सोसाइटी को एक फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर और उसकी एंडलेस प्रिंटिंग के ऊपर अपनी इकोनॉमिक्स पूरी बेस कर दी, जो चीप इजी मनी आप दे रहे थे लोगों को, और फिर फैमिली का इंस्टीट्यूशन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आपने आपकी कंट्री में, क्योंकि नाउ चीप एंड इजी मनी मीन्स ईच फैमिली मेंबर इज गोइंग टू मिसबिहेव विद द अदर फैमिली मेंबर। हाँ आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे हैं सीधा घर में। सो दिस एंटायर, जो मैं बोलता हूं कि एडम स्मिथ कैपिटलिज्म हैज कॉस्ट 60% डिवोर्सेस,
This is the output of extreme capitalism, toxic individualism, right? तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर ही हॉलो है, क्योंकि आप छाप छाप के पैसे दे रहे हैं अपनी पब्लिक को, बिकॉज यू आर रिजर्व करेंसी स्टेटस, यू आर एक्सप्लॉइटिंग दिस प्रिविलेज. लोगों को मनी क्या है उसका वैल्यू ही नहीं पता जब. सो एवरीबडी इज गोइंग टू मिसबिहेव, नॉट स्टडी, नॉट फोकस ऑन करियर. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मुझे एक फ्रेंच कपल यहाँ पे मिला था कुछ महीने पहले. 3 महीने के लिए यहाँ घूमने आए पूरे सामान के साथ. तो मैंने बोला किस लिए आए हैं. बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वैकेशन. तो मतलब वहां पे एक्सपेंसिव होगी जो भी है, आई डोंट नो. तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वैकेशन. तो मैंने बोला ये आप 3 महीने के लिए फ्रांस से निकल लिए इतना सामान लेके, तो व्हाट अबाउट योर जॉब्स. तो बोल रहे वी डोंट केयर, वी आर सोशली सिक्योर्ड. मतलब उनको गवर्नमेंट कवरेज दे देती है अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम ये सब. बोले हम नया जॉब ढूंढ लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स. मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई. सो ये पूरी सोसाइटी अब जो फियाट डॉलर, और क्योंकि पीपल नीड टू नो यूरो इज ऑल्सो 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस, राइट. 59% इज डॉलर, 20% इज यूरो. तो इन सब ने अपनी इकोनॉमीज जो है पूरा वोकिज्म करके खत्म कर दिए. जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, फैमिली का बैकिंग नहीं है, करियर का ठिकाना नहीं है, आपका ग्रेजुएशन आते आते आपके पेरेंट्स 2-3 चेंज हो जाते हैं. यू हैव नो क्लू व्हाट यू आर डूइंग. आप लड़ाई क्रेडिट कर रहे हैं, बंदा है लेडी है कि दे है. करेक्ट. हाँ, उनको कुछ नहीं पता. हाँ, ओ ये तो ट्रूडो हैज डिक्लेयर्ड $75,000 फॉर दिस, कि जिसको जो चेंज करवाना है करवा लो. सो यू नेवर नो व्हाट, आई मीन इतना वो हो चुका है ये सोसाइटी. आप समझे कि कोई भी इकोनॉमी या जो कैपिटलिज्म थ्राइव करता है, जब वो उसका बर्थ होता है, तो हमेशा से ट्रेडिशनल वैल्यू, फैमिली वैल्यूज, उसी के बेस पे कैपिटलिज्म या इकोनॉमी चल सकता है. मतलब स्टार्ट उसका बर्थ. पर जब आप एडल्ट हो जाने के बाद ये फियाट रिजर्व करेंसी का ड्रग उनको देते हैं, चीप मनी का, तब जाके ये वोकिज्म फैलता है. अच्छा, कैलिफोर्निया का मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कैलिफोर्निया इन फ्यू इयर्स. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि जब कैपिटलिस्ट जब बॉर्न होते हैं, जो मैंने बताया कि ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, तो आप देखें कि मार्क जुकरबर्ग हो गया या सुंदर पिचाई अपने बच्चे को फोन्स नहीं दे रहे, स्मार्टफोन्स वो खुद नहीं दे रहे, राइट. तो जब उसका बर्थ होता है कैपिटलिज्म का, तब ट्रेडिशनल वैल्यूज पे होता है. फिर कैपिटलिस्ट क्या करने लगते हैं कि उनको चीप लेबर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए इलीगल्स को सपोर्ट, माइनॉरिटीज को सपोर्ट, फेमिनिज्म का वेव, इंडिविजुअलिज्म का वेव, ये सब चला चला के चीप लेबर सप्लाई लेने के लिए ये सारे इजम्स को स्पॉन्सर किया जाता है, वोकिज्म एंड ऑल. और फिर वही उनको खत्म कर देते हैं कैपिटलिस्ट को. फिर वो जाते हैं नेक्स्ट स्टेट में जहां पे ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है वापस. तो इसीलिए आप देखते हैं ड्यूरिंग बाइडेन टर्म many corporate headquarters shifted from blue to red states. दिस इज अ गेम सर. ये तो मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म. ये तो बिल्कुल वही है ना. जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं, रेडिकल्स जो मिडिल ईस्ट से निकलते हैं जी. और यूरोप जाते हैं, वो बोलते हैं हम तंग आ चुके हैं ये रेडिकलिज्म से, इसलिए बचने के लिए इधर आ रहे हैं. फिर वहां जाके वही चीज फैलाते हैं, वहां जाके नई जगह पे. ये वही चीज है. इट्स द सेम थिंग. अमेजिंग अमेजिंग सर. तो जितने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया से शिफ्ट होंगे और रेड स्टेट में जाएंगे, टेक्सास, फ्लोरिडा, जो भी है, हैं, फिर वहां जाके वापस यही सारी वोकिज्म की चीजें स्पॉन्सर करना शुरू करेंगे. फिर वो सोशलिस्ट फ्रीबीज का प्रेशर आएगा, वो स्टेट बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर वापस दूसरा नया रेड स्टेट ढूंढेंगे. तो ये वापस वही घूमता रहेगा. दिस इज हाउ द ज़ोंबीज क्राउड स्प्रेड एंड फिनिश ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स. ऐसे ही होता है. अच्छा, ये लेफ्ट का भी आप रोल देख लें, हर जगह सेम.
लेफ्ट जो है उसको पावर में रहना आता नहीं है, जो भी बोलो। तो करेक्ट, उनको हाँ। पावर में इंटरेस्ट भी नहीं है। उनका क्या इंटरेस्ट है मैं बताता हूँ। लेफ्ट जहां भी एंटर होता है, वो एंटर होएगा स्टेट में, दरवाजा खोल देगा रेडिकल्स के लिए, zombies फ्रीबीज क्राउड के लिए। फिर रेडिकल्स इनको मार के स्टेट का पावर ले लेंगे, फिर लेफ्ट निकल लेता है नेक्स्ट स्टेट के लिए। इट्स द सेम फॉर्मूला। ईरान में जब ये रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो जी। लेफ्ट और रेडिकल्स दोनों मिलके किए रेवोल्यूशन। और हाँ। पहले ही वीक में रेडिकल्स ने लेफ्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। द सेम वीक ऑफ ग्रैबिंग पावर। आप केरला देख ले, केरला में अभी लेफ्ट का रूल है, ठीक। थोड़े टाइम में रेडिकल्स विल फिनिश देम ऑफ, एंड दिस लेफ्ट विल एंटर कर्नाटका। आई एम हम्म। टेलिंग यू, दिस इज द मेथड। वर्ल्ड वाइड सेम फॉर्मूला है, कहीं पे कोई चेंज नहीं है। बंगाल में जैसे ही पावर जाएगा, रेडिकल्स विल टेक ओवर, और फिर लेफ्ट विल गो टू बिहार, एंड देन ओपन द डोर्स ऑफ बिहार फॉर रेडिकल्स टू कम इन। यही प्रोसेस है, just like that capitalist and communist which I explained for California. It's the same process. इट्स लाइक अ, बोलते ना, अब Chain. आई थिंक, हाँ, जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू द अदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कूदते वो रहते हैं आगे से। बस फ्रीबीज zombies केओस वाले क्राउड क्रिएट करो। That's what. वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्रीबीज ज्यादा हो। एंड वही मैं आपसे पूछ रहा था, इन लोगों ने 4 ट्रिलियन में से कुछ तो डाल दिया इकोनॉमी में, अभी ये अभी बैंक इसको में बेल आउट डालेंगे। नहीं करेंगे, इसको बेल आउट करने वाले। $620 बिलियन तो बोल दिया है सर, अब तो हो जाएगा ये तो 400 में से, 4 ट्रिलियन में से इसका आपने दो ढाई इन्फ्लेशन आएगा, इसका मैसिव इन्फ्लेशन आएगा। वो हाँ। इन्फ्लेशन आएगा जो जो दूसरा नेक्स्ट साइकिल फिर बैंकिंग क्राइसिस का शुरू होगा। हाँ, तो ये तो फिर डबल एज वेपन है ना सर। आप इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन को आप फिर वो बेस पॉइंट बढ़ाओगे, बेस पॉइंट बढ़ाओगे तो और बैंक फेल होंगे। That's what they want. सर हु इज Basically, the main 4, 5, 6 banks will are trying to collect all the deposits and all the debts. जब सब एक ही जगह accumulate हो जाएगा, फिर ये reset button is very easy. क्योंकि एक करेक्ट, करेक्ट। पैनिक तो क्रिएट हो ही चुका है। जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, दे आर लाइक नाउ शिफ्ट टू द बिग बैंक, यहाँ से निकाल लो वहां चलते हैं। उनको पता नहीं है वहां पे ट्रैप रेडी है। दे डोंट नो दैट। सर बट व्हाट इज द मोटिव, इसका क्या रीजन है सर? डीप स्टेट जो है इनका, इनको अब इनको पता है, आपने जैसे बताया कि आपका भाई इकोनॉमी का इतना बड़ा डेट है, आपका आपका जो सिस्टम अभी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, एंड दे हैव टू रीसेट इट। नहीं तो वो होगा नहीं, नहीं तो ये जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे चलाएंगे आपकी कंट्री, एंड इनको पता चल रहा है वो। नहीं, ये सी, वेस्टर्न मासेस जो हैं, they are critical of the government, but they are still not aware of what all is going on in the व्हाट back ऑल, end. या इन देयर नेम। हाँ, तो हाँ ये आप देखोगे कि जैसे ये पूरा जब एक्यूमुलेट हो जाएगा बड़ी बैंक्स में, जी। उसके बाद जो रीसेट का बटन प्रेस होना है, उसमें आप देखेंगे कि टाइमिंग भी मुझे मिली जुली सी लगती है। जैसे जो लिबोर से शिफ्ट होना है, वो भी मिड 2023 है। आप देखेंगे कि डिजिटल डॉलर जो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो मिड 2023, राइट। और इनका जो डेट सीलिंग जो बढ़ाना है, वो लिमिट का डेट भी लास्ट डेट मिड 2023। और फिर अगस्त में ब्रिक्स समिट है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि सब टाइमिंग उस हिसाब से चल रहा है, विच इज वाई दे आर स्टिल कीपिंग क्रेडिट स्विस अलाइव। क्योंकि एक बार जब क्रेडिट स्विस गिरेगा, वो तो गया उसके फिर। बाद उसके बाद पूरा कंटेजियन है। हम्म। So that spreads all over to Europe banks and then to the US banks. सर ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी हमको, मतलब ऑब्वियसली मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इसके बारे में मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं ये कॉन्वर्सेशन को एक व्यूअर की तरह देके काफी सारे सवाल लेके आपके साथ दोबारा बात करूंगा इसके बारे में, Sure, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज यू नो इजीली पैलेबल, बिकॉज जैसे जैसे आप कुछ बोल रहे हो मैं इधर पे लिख रहा हूँ कुछ चीजें, इज जस्ट सो मच। तो मेरे को खुद एक व्यूअर की तरह देख के, अपने व्यूअर्स के कमेंट्स देख के, उसके बाद देन वी विल प्रोबब्ली कम बैक टू यू। बट मेरे को sure. एक छोटा सवाल है सर, जस्ट टू क्लोज दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन,
कि सर इसमें सबसे ज्यादा गेन किसको है सर, एंड एक तो सबसे ज्यादा गेन किसको है, और हाउ डज अ सिटीजन लाइक अस प्रोटेक्ट इटसेल्फ? So, see, one thing that you have to understand that the energy is the real reserve currency, and dollar was just riding on it since 1971. करेक्ट. And the real purchasing power of currency is physical gold and silver. तो हमारे जितने भी भगवान हैं वो ऐसे ही गोल्ड पहन के नहीं बैठे हुए हैं. दैट्स अ सिविलाइजेशनल विजडम कि आपका परचेजिंग पावर ये है. आपका ह्यूमन राइट्स तब तक ही आप प्रिजर्व कर पाएंगे जब तक आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड है. जैसे ही आपसे फिजिकल गोल्ड दूर हुआ, खत्म. आपकी आपकी ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब कोई और डिफाइन करेगा. ठीक. सो गोल्ड इज द ओनली एसेट which has zero political risk, zero geopolitical risk, zero credit risk, zero liquidity risk, zero default risk, right? uh, this is the only one. गोल्ड एंड सिल्वर और जस्ट गोल्ड सर? Gold and silver, but massively gold, because gold is also used as inputs for other kinds of industrial products. जी So जी जी जी. it has other usages which are normal usages, जैसे सोलर पैनल ये सब में भी लगता है. Gold is the only one which has absolutely zero risk, right? तो वो जो हमारा जनरेशनल विजडम है सिविलाइजेशन का, that's what सनातन is. So you will see that इंडियंस जब मतलब ये 30-40 साल से यूएस डॉलर ने प्रेशियस मेटल्स को आर्टिफिशियली सप्रेस करके रखा था, तो इसका जो वैल्यूएशन अब जूम होना है post de-dollarization, you won't be able to have retail jewelry shops around. It's going to go that high. So, but you will see some kind of regulations coming in. माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा. कुछ कुछ कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नेशनलाइजिंग. बोल दिया है हाँ. कि जितना माइंस में से निकलेगा उसका 80% सेंट्रल बैंक में जमा करो. मैक्सिको ने बोल दिया लिथियम इज नेशनलाइज्ड, राइट? हम्म. तो ये तो अब मूवमेंट्स होगा ही, क्योंकि करेंसी पैग होने वाली है, और करेंसी पैग होने वाली है मेटल्स के साथ. तो जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं इन पे बहुत हैवी रेगुलेशंस आने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. आप यूएस के मूव्स देख लो. पेंटागन ने बजट मांग लिया है कैनेडियन माइंस में इन्वेस्ट करने को. दूसरी एक, यूएस हैज asked for an all stake takeover bid of Australia's biggest gold producer. तो ये तो क्लियर है, एवरीबडी नोज वी आर गोइंग टू द पेग्ड करेंसी वर्ल्ड. किसी को डाउट नहीं है. तो जिनको डाउट है वो वही है जिनके जॉब जाने वाले हैं. जो जो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिगीज हैं, जो अभी भी हम्म. डिनायल में बैठे हैं कि ये नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है. तो उनको पता लगेगा कि कितना बड़ा रीसेट आ रहा है. हाँ, जो आज तक वो म्यूचुअल फंड्स एंड दिस एंड दैट जो वो बेच रहे हैं वो तो मानेंगे नहीं कभी. ऑफ कोर्स पीपल विल नॉट एग्री टू इट. वो तो होगा सर. एशिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा और वेस्ट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा. सर हमारा हम लोग कहाँ खड़े होते हैं एज इंडियंस? So as Indians, we have the highest private per capita gold. So we will become rich as it is just by the gold that we have. तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो इंडियन सिटीजन्स के पास है, बिकॉज इनको तो सेविंग्स वाली अकल है ही नहीं बाकी कंट्रीज को, क्योंकि ये तो वन लाइफ में बिलीव करते हैं. तो उनका तो कोई सेविंग्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. ऊपर से फियाट रिजर्व करेंसी का एंडलेस प्रिंटिंग. हम्म. तो उनको सेविंग्स तो कुछ दिमाग में ही नहीं जाता है. सैटरडे संडे आते ही वीकेंड ऑफ, और साल के 5 वेकेशन होते हैं उनके वेस्ट में. और अभी तो 4 दिन बोल रहे हैं सर, 4 days वर्किंग. हाँ, पूरा वोकिस्ट है. वो क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. वंस चाइना सेज नो मोर सप्लाईज, इट्स ओवर. इसके बारे में मैं पूछूंगा सर आपसे, एंड आई एम लीविंग अ टीजर फॉर दिस थिंग. ये चाइना एंड का क्या रोल रहेगा इसके अंदर, वील हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारा उनके साथ ही द एंटायर गेम विल बी द सेंचुरी ऑफ एशिया अगर आ रही है, तो द सेंचुरी ऑफ एशिया इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. क्योंकि जापान तो खैर जो भी कह लीजिए, जापान इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बट इट्स अ डाइंग कंट्री.
अनलेस एंड अनटिल दे चेंज देयर कंप्लीट सिस्टम। और अभी भी अगर वो आज, जब आप और मैं बात कर रहे हैं सर, आज अपना वो बर्थ रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको 20-25 साल लगेंगे बिफोर दे लगेगा। नो, इट्स कैन डू ओवर। समथिंग। ये सारे जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस के बेस पे इकोनॉमीज चलाते हैं, जी। जो वन लाइफ में बिलीव करते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है अपने एजेड पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन के एजुकेशन को कंफर्म करने का, टॉक्सिक इंडिविजुअलिज्म और करियर ओरिएंटेड और फेमिनिज्म के वेव पे चलते हैं, उनके लिए कोई फ्यूचर ही नहीं, क्योंकि वो मानते ही हैं वन लाइफ में। तो क्यों क्यों वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी कंट्री या सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी, जब एवरीथिंग यू डिवाइस्ड बेस्ड ऑन वन लाइफ? तो फिर आपने सेविंग्स और बर्थ रेट्स का करना ही क्या था? करना ही क्या है। जी। आपने तो हैंड ओवर ही कर देना है, जो जो कब्जा कर लेगा उसको दे दिया आपने। जैसे पार्सिस निकल गए ईरान से आफ्टर हम्म। फॉलिंग बर्थ रेट्स, हम्म। पार्सिस हैड टू लीव। करेक्ट सर। जिनके पास रिप्रोडक्शन था, बर्थ रेट्स था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया आपका वेल्थ, सिंपल। पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो तो उसी को पास होगा हु हैज रिप्रोडक्शन, राइट? जिनके पास नंबर्स है वहीं पे पास होगा। ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई जी हाँ, इसकी क्वेश्चन ऑब्वियसली ही सर। नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन जी। आउट इट। हम्म। तो जो भी बंदे वन लाइफ में बिलीव करते हैं उनके साथ वही होना है। जैसे ईयू में दे हैव फॉलिंग बर्थ रेट्स, दे कॉल्ड इन रेडिकल्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। बहाना क्या है? मैन पावर रिप्लेसमेंट, क्योंकि खुद का है नहीं बर्थ रेट्स, वो भी यूएस राइट? में भी वही हो रहा है, आपने पूरा बॉर्डर खुला रखा हुआ है, वो घुस रहे हैं वो वहां तो पर बंदे। वो तो इकोनॉमी इमिग्रेंट्स वाली है, उनके पास तो दिमाग भी नहीं है। कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स भी नहीं मिलेंगे इन अ हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम, जहां पे कैपिटल ट्रिमिंग हो जाएगी इकोनॉमी की बाय 60%, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है बाय हाँ। 2025। हम्म। उतनी कम सैलरी लेवल्स में कौन जाएगा वहां? फिर तो वापस आएंगे। वापिस आएंगे जो है वो भी, मतलब उनकी इकोनॉमी चलाएगा कौन? दैट इज क्योंकि सोसाइटी तो, फैमिली दे हैव डिस्ट्रॉयड फैमिली, आई एम टेलिंग यू। नेटिव अमेरिकन का जब तक वो ग्रेजुएशन में आता है तो उसके 2-3 पेरेंट्स तो चेंज हो चुके होते हैं। हु विल एंश्योर दैट ही फिनिशेस ग्रेजुएशन? सैडली दिस थिंग इज आल्सो हैपनिंग इन इंडिया टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बिल्कुल बिल्कुल, विच इज वाई आई से दैट वी हैव टू कम बैक टू द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, विच इज टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ साइकिल्स। इन सबका सॉल्यूशन उसी में है और किसी में नहीं। वही है ना सर, लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पहले तो बोलते थे, वो वाला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। आई मीन मेरे हिसाब से दिस जो हम लोग आज कर रहे हैं, दिस इज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अभी भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ है। होगा होगा, जब हम्म। once once the people are oriented on what the ancient civilizational wisdom of India was, I think जी। everything will fall into place। और जैसे ये फियाट रिजर्व करेंसी जाएगी, तो जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगना है, वो सारे ग्लोरीफाइड जॉब्स जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो जब गायब हो जाएंगे, तो तुरंत क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल का फिर करना क्या है? आप 15 साल चार दीवारी में बंद करके बंदे को मार्केट रियलिटी से जबरदस्ती दूर रख के, फेमिनाइन मेमोरी बेस्ड उसको 3 घंटे का पेपर लिखवा के 15-20 साल बाद एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट से उसको 5 साल तक का भी गारंटी नहीं है कुछ मिलने का। तो फिर ये ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल का हमने क्या करना है, फिर क्यों रखना है? तो जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तब ऑटोमेटिक द एंशिएंट इंडिया स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइजिंग सोसाइटी विल कम अप, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब जॉब्स ही नहीं है तो क्लासरूम जस्टिफाई कहां से होगा? गुरुकुल, the ये realities of the teachings of the realities of life स्किल्स rather बेस्ड than। एजुकेशन, स्किल्स बेस्ड। आपके जी पास जी। स्किल है, आप उसको जो जो गुरुज हैं वो प्रैक्टिकली दे शुड बी यूजिंग दो स्किल्स। और अभी अभी के टाइम में मैं बताऊं कि जितने भी टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं, इफ दे themselves are making money and livelihood by those skills which they are trying to come and teach, then only you allow them to come in, otherwise it makes no sense। It's going to be the era of individualistic individualism, because corporates, as per se, corporate structures will get moved quite a bit. So कॉर्पोरेट
corporate structure is going to have a huge problem in the pegged currency world, because low interest rate regime in Asia means everybody will try to enterprise. जो Absolutely, sir. वेस्ट में जितना भी इनोवेशन हुआ वो इसीलिए हुआ ना, बिकॉज ऑफ दिस फिएट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स. Yeah, that's what I'm saying. So corporate structures तो सारे हिल जाएंगे. It's only गोइंग टू बी individuals who have certain skills and who have something going for themselves, their own structure of income and their own structure of this thing will be able to survive. नहीं तो आप तो अगर आप किसी connected स्ट्रक्चर में हैं तो उसको जब तक वो सर्वाइव नहीं करेगा आपका सर्वाइवल तो बहुत डिफिकल्ट है बहुत डिफिकल्ट है. सर. मजा आ गया मतलब इट्स सच अ आई ओपनिंग डिस्कशन एंड आई एम कीनली रिक्वेस्टिंग यू कि आपके साथ मेरे को ये आई वांट टू लिसन टू दिस टॉक and I'm going to, question you on this. And, it's not to argue with you, but to actually learn more, nothing else. मैं आपको नहीं, बहुत भी कर सकते हैं. नो नो बिग डील. हाँ, सो वी विल प्लान दिस आउट सर बिकॉज ये चीज समझने वाली है. मेरे पास सर ऑनेस्टली एक ग्रुप है लोगों का जो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में है. मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है सर. ये सारे लोग पिछले 5-6 दिनों से यही बातें कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग कि यार ये फ्यूचर क्या है इस चीज का. एंड आई थिंक ये टॉक से काफी लोगों को पता चलेगा फ्यूचर. एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस निकलेंगे उसके लिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि हम लोग एक फॉलो अप करें. एंड विल ट्राई एंड डू द फॉलो अप अगर आप फ्री हो वीकेंड के अंदर, सो दैट आई कैन इन्वॉल्व ऑल दीज गाइज एंड दे कैन आल्सो आस्क यू सम क्वेश्चंस. श्योर श्योर. So it'll be fun, sir. But honestly, sir, this has been mind-boggling, and it is wonderful to talk to you. For the first time, I've heard your shows. That's a different experience, but actually live talking to you, and getting my mind going in that direction is also it's a great experience. Thank you so much, sir. Till next time, sir. Jai Hind.